First is, we said what is financial market, यानी कि financial market is the market where the exchange takes place. That is आपका जो पैसा जो आपने बैंक में लगाया, now you have put it into the bank, but the banks have not put it. वो आपका जो पैसा है that is being circulated into the capital markets. Secondly, you are an investor. You have invested in the shares, you have invested in the securities like debentures or bonds. So that is also used by the business. जब बिजनेस से जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है दैट इज अगेन रीडायरेक्टेड टू द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स थ्रू और इन द मीन्स ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिविडेंड और आपका इंटरेस्ट. याद रखना, दिस इज द व्हाट यू कॉल एज इन्वेस्टर्स भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, सेवर्स भी, लेकिन सेवर्स डायरेक्टली नहीं लगाते, इनडायरेक्टली लगाते हैं बिकॉज दे ओनली सेव देयर मनी इन द बैंक. और ये जो बैंक होती है वो डायरेक्ट करती है, वो यूज करती है दीज मनी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड व्हेन द बिजनेस इज फ्लरिशिंग तो इट गिव्स बैक, वो इनको वापस देता है. सेविंग्स वालों को इंटरेस्ट मिलता है, इन लोगों को प्रॉफिट या फिर जो आपका डिविडेंड होता है वो मिलता है. सो दिस एंटायर जो आपका एक्टिविटी है इनको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट. नाउ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी वी हैव डिफरेंट, वी विल बी रिक्वायरिंग मनी फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड एंड वी रिक्वायर मनी फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो लॉन्गर टाइम का मतलब कैपिटल हो जाता है, शॉर्ट टर्म दैट इज आपका मनी मार्केट जो है दैट इज आपका लेस देन 1 year. दिस इज मनी मार्केट विच इज लेस देन. और इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट यू विल बी लर्निंग, दैट इज आपका टी बिल, देन आपका कमर्शियल पेपर, देन आपका कॉल मनी, कमर्शियल बिल आपका, देन आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दैट इज सीडी हमारा, so we have certain money market instruments which are used as T-bill, commercial paper, call money, commercial bill and certificate. Now आपके पेपर में कैसे questions आ सकते हैं, where it is used, where it is used, by whom it is used and मतलब कि इसका issuance क्या है and what is its duration. कॉल प्रेशर बिल यानी कि टी बिल, ट्रेशरी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई. याद रखना हमारे इंडिया का जो ट्रेशरी है वो है आरबीआई. तो ट्रेशर बिल रिफर्स टू आरबीआई, यानी कि दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आपका जो आरबीआई है ये इश्यू करता है. इट इज इश्यूड बाय आरबीआई. इश्यू कौन करता है, आरबीआई. एंड किसके बिहाफ पे करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. दिस इज इन मल्टीपल्स, आपका मल्टीपल्स में होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स. इसको हम लोग जो है जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं. इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 25,000. आपका जो है, लेट मी क्लियर इट, टी बिल, these are the 4 points that you have to learn. Next is commercial paper.
Now there are two terms in our this financial market. One is commercial paper और दूसरा हमारा आ जाता है commercial bill. तो commercial paper जो है it is these are the 5 points for commercial paper. Commercial paper आपका जो है they are issued by large credit worthy companies. मतलब जो बड़ी बड़ी companies होती हैं normally they are the one who are issuing it. It is a promissory. See, the meaning of promissory is promise to pay. This मतलब मान लो कि I have bought the commercial paper of a company, so it is freely transferable. मतलब कि I can give it to someone else because there is no name written. So that is why we normally call it as unsecured, because there is no clause and it is transferable also. When we are buying it, we buy it as a discount. जैसे मुझे 5 लाख का खरीदना तो I'll be buying it for 4,90,000, and when I'm getting back the money, that is I'll be getting 5 lakh. तो ये जो discount है 10 का वो मेरा जो था that was my interest. So it is sold at discount and redeemed at par. And the minimum amount we need for this commercial paper is 5 lakh. We also call it as a bridge financing because when the companies are issuing their shares, when the companies are going for the equity capital, they need money for funding of their prospects and all other. That is why we also call it as for raising the capital, they require money. So we also call it as bridge financing. The amount is 15 days to 1 year. That it may be issued for 15 days and maximum is 1 year because all of our money instruments are less than 1 year. So it is 15 days to 1 year. ये आपको जो है मतलब कि ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे आपके जो है important points आएंगे. Call money, very simple. It is used for the interbank transactions. This is not used by anyone else. Like treasury bond आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो कॉल मनी आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए है. कमर्शियल पेपर आपके जो है दे आर फॉर द क्रेडिट वर्थ प्राइवेट कंपनीज. इट्स ऑन डिमांड. जो इसका इंटरेस्ट होता है उसको हम
मतलब कि वी ऑल्सो कॉल एज अ कॉल इंटरेस्ट जो होता है दैट इज हाईली मतलब कि चेंज होता है, मीन्स इट कैन बी 1 मिनट पहले आप कह सकते हो कि 0.1% था, तो लेटर ऑन इट कैन बी 2% ऑल्सो। वॉलेटेबल बोलते हैं हम इसको, वॉलेटाइल बोलते हैं। सो दिस इज वन विच इज यूज्ड फॉर, ये आपका जो है 1 डे से 15 डेज के पीरियड के लिए होता है, नॉट मोर देन दैट। एवरी बैंक हैज टू मेंटेन अ कैश रिजर्व रेशियो, उनको जो है कैश रिजर्व रेशियो जो है दे हैव टू follow it according to the RBI's guideline. So certain times they are short of this cash ratio because the savings on that particular day or at that particular moment may be less and the people who have withdrawn या फिर आपका जो क्रेडिट था वो ज़्यादा हो गया, तो कैश रिजर्व रेशियो आपका नहीं बन पाता। सो इट इज़ एन इंटर बैंक। तो जो बैंक्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दे टेक मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से दे टेक द अमाउंट एंड बट इसका जो इंटरेस्ट होता है दैट इज फ्लक्चुएटिंग। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर कि हाँ इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, सर्टन टाइम्स इट मे बी वेरी लो एंड इफ द डिमांड इज मोर वो ज़्यादा होता है, जिसको हम कॉल रेट बोलते हैं द इंटरेस्ट पीरियड, एंड इट इज ओनली फॉर 1 to 15 days. Last but not sorry, second last is certificate of deposits. Now the word itself says certificate of deposit, यानी कि जब हम deposit करते हैं for a period of 91 days, 90 नहीं 91, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आपकी जो है 1 डे का भी बहुत फर्क हो जाता है बिकॉज दैट गोज टू द नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफ डी को लेते हो, इफ़ यू आर ओपनिंग एन एफ डी, इफ इट इज 364 डेज आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत कम होगा एंड 366 डेज में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप सोचोगे 2 दिन में क्या फर्क पड़ा, उनके लिए दैट इज अ 1 ईयर, 366 मीन्स 1 ईयर का एक्सटेंशन हो गया। सो दैट इज वाई इट इज 91 days to 365 days. It is used by or issued by कई बार क्या होता है द बैंक्स आर ऑल्सो शॉर्ट ऑफ मनी, सर्टन टाइम्स द क्रेडिट आपका ज़्यादा हो रहा है, सो उनको लगता है द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, जैसे IDBI है आपका, तो IDBI, SIDBI, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या फिर IDBI, when they see that they have to revamp the economy, तो वो पब्लिक से जो है दे आस्क फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ, नाउ FD इज वॉलंटरी, आपकी मर्जी होती है, वेर इज आपका जो मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है दैट यू हैव मतलब कि वो दे आर गेटिंग, वो मतलब हमको जो है दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सर्टिफिकेट डिपॉजिट इज हायर देन सेविंग्स एंड FD। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ऑन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो हमेशा हाई रहता है देन FD, और FD में तो बहुत ही कम रहता है। आजकल तो बड़े सारे मीम्स भी बन रहे हैं। देर इज़ वन वेरी फेमस स्पीकर, अंकुर वकाया कुछ नाम है, आई फॉलो हिम, तो वो भी कई बार बोलता है कि FD में करने के बाद, बिकॉज FD में आपका रिटर्न नहीं होता है, वेर एज सर्टिफिकेट डिपॉजिट आपका शॉर्ट टर्म मनी है बट यू गेट अ गुड इंटरेस्ट। Last but not the least, it is, we have already done this in 11th standard. This is also called as bill of exchange. ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है आपका, ये 3 मंथली 6 मंथली ऐसे जाता बेटा, ये याद रखना, क्योंकि पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, पेपर में ही आया हुआ है, एंड एनी क्वेश्चन विच हैज कम इन 12th बोर्ड वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन योर दिस काइंड्स ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो. So this is actually a trade bill which is drawn between a trader and a supplier, जो आपके टू इंटर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनके बीच में होता है.
This is actually a self-liquidating and also one of the most common instruments that we use in our business. छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़े बिजनेस तक का जो है ये सेल्स वाला जो सेल्स टू सप्लायर वाला जो होता है ये यूज होता है. But sometimes what happens is, this is for the working capital requirements, and there is nothing कि कितने का होता है because it is used by all the business firms. So what happens is there is a bill of exchange between the trader and the supplier, that is a creditor and the debtor. और अगर हम इस बिल को, अब मान लो कि सप्लायर ने दे दिया पैसा, सप्लायर ने सामान दे दिया रॉ मटेरियल्स, बट ही हैज नॉट गॉट द मनी. So bill of exchange है, he has been promised that he would be given this amount after 3 months, but if he requires it, अगर उसे पहले उसे करता है, and if it is presented in the bank and bank उसको accept करता है, it is presented in the bank, क्योंकि आपके जितने भी business होते हैं, everyone is having the current accounts. So अगर करंट अकाउंट है तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड इट पेज द मनी टू द सप्लायर एंड लेटर ऑन दिस ट्रेडर हैज टू पे टू द, तो दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल बिल. वैसे तो इसका नाम ट्रेड बिल है, बट व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय द बैंक इट बिकम्स कमर्शियल बिल. याद रखना इसका वैसे तो नाम, इट इज अ शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग फाइनेंस है. इट इज known as commercial bill only when it is accepted by the banks. Otherwise, it's a simple bill of exchange or trade bill that is there in all the business, whether it is a very small time solo, मतलब कि sole proprietorship है तो वो भी अपना सामान मंगवाता है तो normally they take it on the credit basis. But if the supplier requires money, he presents this bill in the bank and bank उसको accept करके उसको पैसा दे देती है, तो that becomes a commercial bill. So these are all the money market instruments. कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंडिंग. दैट मीन्स वेयर यू मे बी हैविंग डेप्ट ऑल्सो. इट्स नॉट दैट कि कैपिटल का मतलब ओनली इक्विटी है. इवन यू हैव द डेप्ट, लाइक डिबेंचर इज अ डेट फंड, और आपके म्यूचुअल फंड में भी देर आर डेट फंड, यू हैव द इक्विटी फंड. सो इट इज द वन जहाँ पर इन पैसों को रेज किया जाता है एंड द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इट अगेन एंड अगेन. तो वो मार्केट जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म फंडिंग जो है दैट इज टेकिंग प्लेस. नाउ इट इज डीलिंग विथ कैपिटल मार्केट. आपका जो है हमेशा ही मीडियम टू लार्ज फंड जो है उनको डील करता है. इट्स नॉट शॉर्ट टर्म, मोर और लेस इट इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म. देन वी हैव द बैंक्स, we have the financial institutions, we have the companies, and of course the government as well as the stock exchange. ये हमारे participants हैं. They are the participants. It may be from ₹10 एक शेयर भी खरीद सकते हो, and there is infinite, वो आपके ऊपर है. Persons like Adani would be investing in crores, then the normal people must be investing in lakhs, so that depends. Liquidity यानी कि अगर हमें पैसा चाहिए तो क्या हम उसको immediately can be transfer into share, sorry into money, तो it is marketable है and it is less than money market. तो मनी मार्केट में तो आपके पास 1 year का है, तो ये आपका जो है यू कैन immediately change it. सेफ्टी डेफिनेटली आपका जो है दिस इज रिस्की. जैसे पिछले 10 दिन में द शेयर मार्केट हैज ड्रास्टिकली फॉलन डाउन.
Daily I am reading the news that the investors have lost this much of crores of rupees. In fact, that day I heard that even जो सबसे गौतम अदानी है, he has lost more than 500 crores in. So it is very risky. If it is a good period, then definitely you are earning. If it is a bad period, you may even lose your invested money. हाँ, but if you are taking the risk, तो जो आपका expected return है, that may be high in the longer period. One has to be very particular and has to be very informative while he or she is investing in the capital market. So as I said, there are primary market and secondary markets. Primary यानी कि जिसको हम बोलते हैं न्यू इश्यूज, यानी कि द फर्स्ट टाइम जब हमारे सिक्योरिटीज इश्यू होते हैं, वेयर देयर इज अ डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स. यहाँ हमारा डायरेक्ट नहीं रहता सेकेंडरी में. इट इज़ वेयर द एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जब वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, they are issuing the securities, they are issuing the equity, that is called as a primary market. हम सुनते हैं this particular company is going public, this particular company is going to issue its share. तो वो हमारा फर्स्ट टाइम होता है. एंड इट इज़ नॉट दैट कि कोई नई कंपनी करेगी, पुरानी कंपनी भी अगर अपना नया कुछ खोल रही है एंड इट इज़ गोइंग टू अलग से उसके लिए फंड करने के लिए वो इन मतलब कि इट इज़ आस्किंग द पब्लिक टू बाय द शेयर्स, वो भी हमारा फर्स्ट टाइम होता है. इट्स नॉट दैट कि एक पुरानी नई कंपनी ही करती है, पुरानी कंपनी भी नए प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकती है. वी हैव डिफरेंट मेथड्स. One is the very common, most common is offer through prospectus. यानी कि गिविंग द एडवर्टीजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर्स. आपके जो है न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देना और देन आस्किंग द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी. You may be having the questions on these methods in your paper. आपके जो है इन आपके पेपर के अंदर इस मेथड से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. If we look into the methods, the very first is offer through prospectus. Then next is offer for sale. यानी कि वो क्या करता है ऑफर फॉर सेल के अंदर, it is also a mechanism. It is also a mechanism to allow the promoters. जो promoters होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में अपने लिस्टेड इफ द से कि आपका जो मार्केट है इट इज़ इन द डाउनफॉल राइट नाउ, जैसे अभी है राइट, एंड अ कंपनी वांट्स टू इशू इट्स securities, its shares. So it may go for different
methods. ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन. लाइक अभी LIC का आया था तो देर वॉज अ लॉन्ग, मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर मचा था. द न्यूज़ पेपर्स हैड द एड, देन दे पब्लिश अ वेरी बिग एड थ्रू विच दे आस्क द इन्वेस्टर्स मिनिमम उनके शेयर की प्राइस होती है. ऑफर फॉर सेल होता है, दे डोंट सेल इट टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली. ऑफर्स फॉर सेल में इन्वेस्टर्स को नहीं बेचा जाता है, दे आर सोल्ड टू द इंटरमीडियरीज लाइक द ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स. उनको जो कि आपके मतलब कि दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ सेबी, उनको बेच दिया जाता है. कंपनी क्या करती है, उनको क्विक कैपिटल चाहिए तो वो ऑफर फॉर सेल या प्राइवेट प्लेसमेंट में जाती है. नाउ इस वक्त में द मार्केट इज डाउन, सो ये जो ब्रोकर्स क्या करते हैं, व्हेन द मार्केट इज हाई देन दे इशू दीज शेयर्स इन द मार्केट एट अ हायर प्लेस. वो खरीद के रख लेते हैं उन शेयर्स को of the companies, and later on they sell it out in the market when the market is good. Private placements, there is a lot of confusion between offer for sale. Offer for sale is to the brokers or the intermediaries, whereas private placement होते हैं to the selected investors, maybe promoters, relatives, उनको दिया जाता है. It is not sold to the consumers directly, it is not sold to the investors in the public, but to the selected, it may be promoters, it may be relatives, it may be selected people जिनको वो बेचते हैं. This is for a quick money. ये उनके लिए तब होता है क्योंकि टू सेल आउट इन द मार्केट मीन्स इट हैज़ टू गो थ्रू मेनी प्रोसीजर्स एंड देन इट हैज़ टू गो थ्रू मेनी, द ड्यूरेशन इज वेरी. आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फिर आपके पास जब सब्सक्रिप्शन आज एप्लीकेशंस आ जाते हैं उसके बाद आप जो हो सेल आउट करते हो, तो दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म. तो अगर उनको जल्दी चाहिए तो दे कैन गो फॉर ऑफर फॉर सेल ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट्स. राइट्स इश्यू, द वर्ड इटसेल्फ सेज राइट्स, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ये अभी LIC ने भी दिया था एंड मेनी कंपनीज हैड यूज्ड दिस राइट्स इश्यू. अगर हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो किसी भी प्रोजेक्ट में, तो दे गिव अ रेशियो. दैट रेशियो इज डिसाइडेड बाय द कंपनी देयर एंड देन इटसेल्फ. वो रेशियो देते हैं कि अगर आपके पास 50 है तो 50 के अगेंस्ट हम 1 देंगे. यानी कि अगर मेरे पास 250 शेयर्स हैं तो आई कैन बाय 5 शेयर्स ऑफ द न्यू वन. सो दे गिव दिस इन द रेशियो फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द EIPO, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आजकल सबसे ज़्यादा है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ गोइंग थ्रू द EIPOs ओनली. आपके जो स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड पर the company list their shares, and through the electronic mode the persons are able to buy or sell it out. So these are the different methods, 5 different methods through which primary market में flotation आपका होता है. यानी कि जब हम कहते हैं flotation of shares, तो सबसे पहला जो हम कहते हैं flotation of shares that goes to the primary market. The word exchange itself is purchase and sale of the existing securities. यानी कि जब ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था प्राइमरी मार्केट, तो देयर इज अ मिनिमम पीरियड उनको जो है लिस्ट करना पड़ता है अपने शेयर्स को. हमने तो मतलब कि ले लिया, लेकिन उसके बाद वी हैव टू लिस्ट इट विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days 10 days डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सेबी हैज गिवन देम द परमिशन. तो एक बार लिस्ट होने के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं दे कैन बाय और सेल. जैसे मैंने प्राइमरी मार्केट से बाय कर लिया है, नाउ आई वांट टू सेल इट, तो आई विल नॉट बी गोइंग टू द प्राइमरी मार्केट. मैं जो सेल करूंगी दैट वुड बी इन द सेकेंडरी मार्केट और इन द स्टॉक एक्सचेंज. सो दिस इज a market which exchanges, which facilitates exchange of shares or debentures into hot cash. आपका जो है hot cash के अंदर, यानी कि it provides liquidity
दीज आपके पास शेयर्स है, आप उसको हॉट कैश में सेल आउट कर सकते हो। यू बिकॉज इट डील्स विद द डिमांड टू सप्लाई थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपका जितना डिमांड होगा उतना आपका प्राइस अप होगा, जितनी आपकी कम होगी उतना आपका जो है प्राइस कम हो जाएगा। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। कंपनी के शेयर्स के भाव ऊपर और नीचे क्यों होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। देन इट इज ऑल्सो स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिकॉज पहले तो क्या होता था, वी डिड नेवर हैड हाउ टू, हम जो है कैसे अपने पैसों को सेफ रखें। But now due to the SEBI rules, there are proper regulations कि हमारा जो मनी होता है it never gets completely drowned. It provides economic growth, क्योंकि यही पैसा आपका जो है रोटेट होता रहता है, तो आपका जो है इक्विटी कट फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स, फॉर द ओल्ड इन्वेस्टर्स, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी करता है। Then it is also the economic barometer of a country. हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसे काम कर रहा है। इफ़ यू हैव सीन देयर आर मेनी वर्ड्स जो बोलता है दैट यूएस का जो है वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया, तो दैट शोज उस पर्टिकुलर पीरियड में व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर। अभी जैसे कि इट इज सेड दैट यूएस इज अंडरगोइंग रिसेशन, तो व्हाट इज दैट रिसेशन, बाइंग एंड सेल्स का जब हमारा बाइंग कम है सेल्स ज़्यादा है, तो दैट बिकम्स कि आपका डिमांड सप्लाई कम है। डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो इकोनॉमी आपका कम हो जाता है, तो दैट इज़ द इकोनॉमिक बैरोमीटर। इंडिया में जो है आफ्टर 1992 स्टॉक एक्सचेंज का जो मतलब कि रोल है दैट हैज़ बिकम मोर, एंड दैट इज़ व्हाई नाउ वी आर हैविंग मोर इन्वेस्टर्स, मोर कैपिटल पीपल, मोर पीपल लाइक यू नो द वेल्दी पीपल। इट वॉज नॉट बिफोर। चाहे हम स्कैम 92 को we call it as scam, but it is actually the period after which people started investing, people started realizing. And of course in the stock market you have certain what we call as speculations hota hai, we call it as gamble also, but yes to some extent हमें पता है what is the मतलब कि जो आपके brokers होते हैं वो speculate करते हैं कि कहाँ तक आपकी जो है इनको, और हम इनको financial expertise भी कहते हैं। We call them as financial expertise also, those who give us the suggestions कि कितना इस particular security का market रह सकता है, कितना कम हो सकता है, should we invest, should we not invest, so there is a scope of speculation also. So in a nutshell, today we have started off with the chapter that is what we call financial markets, which consist of two markets, that is a primary and secondary. Capital and money market. Money market is short term instruments, whereas आपका जो है capital जो है that is a long term investment. In long term we have two, that is primary and secondary. We have read the first market जो हमारा होता है, first issue market हमारा primary होता है. We have 5 types of flotation methods. सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड को सेल या मतलब कि बेचा जाता है।